میں آپ کو بتائیں چڑیا گھر میں ویٹرنری ڈاکٹرز کی عدم دستیابی، جانوروں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ گزشتہ روز چڑیا گھر میں بیماری کے باعث لاما مردہ حالت میں پایا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے چڑیا گھر میں ایک بھی ویٹرنری ڈاکٹر موجود نہیں۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب وائلڈ لائف محکمے کی جو غفلت ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ یہی دیکھا جا رہا ہے پارکس ہوں یا چڑیا گھر ہوں، وہاں پہ جانور جو ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ نئی نسل کے ڈاکٹر جانور لانے کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن اگر بات کر لی جائے ڈاکٹرز کی تو یہاں پر میں اس وقت چڑیا گھر میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث جانور جو ہیں وہ یہاں پر مردہ حالت میں پائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز یہ دیکھا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ لاما موجود تھا اور لاما جو ہے وہ مردہ حالت میں یہاں پر پایا گیا، کیونکہ ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جنگلی جو لاما ہے وہ تیزی سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن چڑیا گھر میں جو لامے موجود ہیں ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے نہیں کی جا رہی۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر نہ بھرتی کرنے پر، نہ تعینات کرنے پر جانور جو ہیں وہ دن بدن بیمار ہوتے جا رہے ہیں، اور بیماری تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لاما جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ مردہ حالت میں یہاں پر پایا گیا، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ لامے کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر جلد از جلد تعینات نہ کیے گئے تو یہاں پر یہی دیکھا جائے گا کہ چڑیا گھر میں جانوروں کی جو تعداد ہے اس میں تیزی سے کمی ہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جی بہت شکریہ سامیہ۔ اربوں روپے کی اورنج ٹرین کے نیچے مرکزی شاہراہوں کی حالت زار۔ اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشنز کے باہر گندے پانی کا بسیرا۔ ٹھوکر نیاز بیگ رائیونڈ روڈ پر اورنج ٹرین کے اسٹیشن علی ٹاؤن کے سامنے سیوریج کا نظام درہم برہم ہے۔ واسا اور ایل ڈی اے کا سیوریج سسٹم ٹھیک نہ ہونے سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ شہر لاہور میں اربوں روپے کی لاگت سے میٹرو اورنج لائن ٹرین تو بنا دی گئی، مگر اورنج ٹرین کے ٹریک کے نیچے کی صورتحال دیکھی جائے تو سڑکوں کی حالت زار ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ پر گڑھے پڑ چکے ہیں اور اورنج ٹرین کے ساتھ جو بچھایا گیا سیوریج سسٹم ہے وہ بھی اب ناکارہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گٹر ابل رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں اورنج ٹرین کے پہلے اسٹیشن علی ٹاؤن کے نیچے گزرنے والی رائیونڈ روڈ ٹھوکر نیاز بیگ پر، اور یہاں کی صورتحال دیکھی جائے تو اورنج ٹرین کے ساتھ جو سیوریج لائن بچھائی گئی تھی وہ اب ناکارہ ہو چکی ہے اور گٹر ابلنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان گٹروں کا بروقت مرمت اور بحالی کا کام نہ ہونے کی وجہ سے جو سیوریج کا گندا پانی ہے اس نے سڑکوں پر بسیرا کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس گندے پانی کا بھی نکاس نہیں کیا گیا، اور آہستہ آہستہ اب اس گندے پانی نے رائیونڈ روڈ پر قبضہ جما لیا ہے، اور اس گندے پانی کی وجہ سے سڑک پر شگاف پڑ چکے ہیں۔ ایل ڈی اے اور واسطہ حکام کی مبینہ غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے یہ طول اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ابھی تک اداروں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اور اب اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا ہے جو کہ کسی بھی وقت جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور اداروں کی جانب سے ابھی تک اس کی مرمت اور بحالی کا کوئی کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اور یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا بہت شکریہ آپ کا زین العابدین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی دیہی اور شہری اراضی رجسٹریوں کی سکیننگ کا معاملہ ہے، اور پنجاب اربن لینڈ سسٹمز انہینسمنٹ پروجیکٹ کے 65 لاکھ رجسٹریوں کی سکیننگ مکمل کر لی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ ہاں جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر کی دیہی اور شہری اراضی رجسٹریوں کی سکیننگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جس میں پنجاب اربن لینڈ سسٹمز انہانسمنٹ پروجیکٹ کے 65 لاکھ رجسٹریوں کی سکیننگ مکمل کر لی گئی ہے۔ ایپلز پروجیکٹ کے تحت 6 ماہ میں 2,85,60,727 رجسٹریوں کی سکیننگ کا ٹارگٹ تھا، جس میں 3 ماہ 20 دن میں 6,30 لاکھ سے زائد صفحات کو سکین کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر عاصم سلیم کا کہنا ہے کہ رجسٹریوں کی سکیننگ سے پنجاب کی دیہی اور شہری اراضی کی ڈیجیٹلائزیشن جلد مکمل ہوگی، جس میں ڈیجیٹلائز سسٹم کے تحت اراضی ریکارڈ کی درستگی، آٹومیشن، پیمائشی نقشہ جات، زمین کی ملکیت کا شفاف تعین ہو سکے گا۔ عاصم سلیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ سکیننگ کے مرحلے کو جلد مکمل کرنے کے لیے ضلعی سطح پر سکیننگ سائٹس قائم کی گئی ہیں، جس میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام اتھارٹیز کے پاس اراضی ڈیٹا بھی مرتب کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ تو آپ کو بتائیں، اسکول کھل گئے مگر سرکاری تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی ایس او پیز مکمل نہ ہو سکے۔
सरकारी स्कूलों को ताहाल वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स और गार्ड्स का यूनिफॉर्म मुहैया ना किया जा सका। बेशतर स्कूलों में माली ही सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटियां करने पर मजबूर हैं। लाहौर के 40% स्कूलों में वॉक थ्रू गेट दस्तयाब नहीं, 20% स्कूलों में मेटल डिटेक्टर्स मौजूद नहीं। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है, लेकिन सहूलियात की फिर भी कमी जो है पूरी नहीं हो सकी। सिक्योरिटी SOPs हैं, उन पर अभी भी अमल दरामद नहीं हो रहा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती की वजह से जो है सरकारी स्कूलों में ताहाल वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर, गार्ड का यूनिफॉर्म मुहैया न किया जा सका। बेहतर स्कूलों में माली ही सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटियां करने पर मजबूर हैं। लाहौर के 40% स्कूलों में वॉक थ्रू गेट इस वक्त दस्तयाब नहीं है, 20 स्कूलों में मेटल डिटेक्टर्स मौजूद नहीं है, 90% स्कूलों के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहनने को यूनिफॉर्म नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की भर्तियों का मुताबिक बार इश्तहार देने के बावजूद रिक्रूटमेंट मुकम्मल न की जा सकी। लाहौर के स्कूलों के लिए कम अज कम 500 सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती की फौरी जरूरत है, ये कहना है टीचर्स का। और उनका कहना है कि तमाम अफसरान रोजाना की बुनियादों पर स्कूलों का विजिट तो करें, लेकिन फंड नहीं दिया रहे। इस तरफ इसके साथ साथ एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि SOPs पर 100% अमल दरामद करवाया जाएगा। हुकूमत से मंजूरी मिलते ही जल्द नए सिक्योरिटी गार्ड भी भर्ती किए जाएंगे। SOPs पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। DC लाहौर राफिया हैदर का UC 52 मनावा का दौरा है। डेंगी टीमों की इनफरादी हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार शरीना जंजुआ ने DC लाहौर राफिया हैदर को टीमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। राफिया हैदर ने इलाका मकीनों से भी डेंगी टीमों की वर्किंग बारे दरियाफ्त किया है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने डेंगी के हवाले से ये UC 52 मनावा के इलाके का रुख किया है और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार शरीना जंजुआ ने टीमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से डेंगी टीमों की इंफरादी हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। DC लाहौर ने टीमों के केस रिस्पांस हॉटस्पॉट्स एरिया की इंस्पेक्शन को मेयार को चेक किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने घर घर जाकर डोर टू डोर मार्किंग की और इंस्पेक्शन क्वालिटी को भी चेक किया। इस वजह से इलाका वकीलों से भी डेंगी टीमों की वर्किंग बारे दरियाफ्त किया। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगी के 20 मरीज रिपोर्ट हुए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि इकबाल टाउन में 3, अजीज बटी टाउन में 3, कैंट में 6, दातागंज वेस्ट और गुलबर्ग में 1-1 केस सामने आया है। निश्तर और वागा में 3-3, जबकि रावी, सलमाबाद और शालीमार में कोई केस सामने नहीं आया आज के रोज। DC लाहौर का ये कहना है कि 24 घंटों में 1080 मकामात से लार्वा बरामद किया गया है। रिपोर्ट शुदा तमाम डेंगी मरीजों का केस रिस्पॉन्स किया जा रहा है। कंफर्म मरीजों के घरों अतराफ में लार्वे की चेकिंग और स्प्रे को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि इलाके में खाली प्लेट को डेंगी स्प्रे को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि इंडोर आउटडोर सर्विलेंस जो है वो डोर टू डोर की जा रही है और शहर के 5 असिस्टेंट कमिश्नर को डोर टू डोर सर्विस, इंडोर आउटडोर सर्विलेंस करने के अहकाम भी लिए गए हैं, जबकि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर भी फील्ड में मौजूद हैं। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब डेंगी के वार थम न सके। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगी के 22 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 45 नए मरीज रिपोर्ट हुए। ज़िला इंतज़ामिया भी इंसदाद डेंगी के लिए मुतहरिक है। कमिश्नर लाहौर ने DHA और डेप्यूटी कमिश्नर ने मनावा का अचानक दौरा किया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। डेंगी मच्छर के वार जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगी के 22 नए मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 45 नए मरीजों में डेंगी वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत पंजाब के एदादो शुमार के मुताबिक रवा साल पंजाब भर में डेंगी के 846 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। जिला लाहौर में डेंगी के 288 मुसद्दिका मरीज सामने आए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अली जान खान का कहना है कि पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगी के 85 मरीज जेरे इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगी के 30 मरीज दाखिल हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगी मरीजों के लिए 2678 बेड मुख्तस हैं। दूसरी जानिब ज़िलाई इंतजामिया डेंगी की रोकथाम के लिए मुतहरिक है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने DHA फेज 6 का दौरा किया। AC कैंट, शालामार और CEO हेल्थ अथॉरिटी लाहौर ने डेंगी सर्विलेंस पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर के खाली प्लॉटों में जमा बारिश के पानी की निकासी की हिदायत। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लाहौर में 25,960 हॉटस्पॉट्स हैं, इनकी बाकायदगी से स्वीपिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने UC 52 मनावा का अचानक दौरा किया और इंसदाद डेंगी टीमों की इनफरादी हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया। DC लाहौर ने बताया कि 24 घंटों में 1080 मकामात से लार्वा बरामद हुआ।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज हस्पताल का दौरा है। नई एमरजेंसी के दौरे के बाद ज़ेरे इलाज मरीज की तमादारी का वज़ीर आला से मुकालमा और कहा कि मरीज को लेकर आया तो लाइट बंद थी और एसी नहीं चल रहा था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सर्विसेज हस्पताल के हालात जल्द बेहतर होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी जिन्होंने आज सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया था, नई एमरजेंसी के दौरे के बाद उनका वहां पर ज़ेरे इलाज मरीज के तिमादार से एक दिलचस्प मुकालमा हुआ और इस मौका पर मरीज का कहना था कि वो जब यहाँ पर आए तो लाइट भी बंद थी और एसी नहीं चल रहा था। हम देख रहे हैं कि अब आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें हैं, तो उन्होंने निगरान वज़ीर आला की एफर्ट्स की तारीफ की। इस मौके पर तिमारदार का कहना था कि आपकी काविशें जो हैं वो नजर आ रही हैं और अब अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हो रही है और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे और कामयाब करे। आप नेक नीति से काम कर रहे हैं। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सूरतों को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और सर्विसेज अस्पताल के हालात का इल्म है, इंशाल्लाह जल्द बेहतरी आएगी। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। पेशेंट है, सब एड हुआ है, एसी नहीं चल रहा। हम लोग देखें मरीज के हाथ देख रहे हैं, देख रहे हैं आप दिन आधे कर रहे हैं, हम देखते हैं मतलब आपकी थोड़ा मुझे पता है यहाँ पे हालत खराब पेशेंट है, सब एड हुआ है, एसी नहीं चल रहा। हम लोग देखें मरीज के हाथ देख रहे हैं, देख रहे हैं आप दिन आधे कर रहे हैं, हम देखते हैं मतलब आपकी थोड़ा मुझे पता है यहाँ पे हालत खराब। खबर दें आपको, महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सार्फिन को चकरा के रख दिया। लेस्को के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ओवर बिलिंग की शिकायत के ढेर लग गए हैं। लेस्को इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू न पाया जा सका। लेस्को अथॉरिटी का भी सिर्फ रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर, सार्फिन की शिकायत और मसाइल को पस से पुश डाल दिया गया। फील्ड अफसरान मीटिंग में मसरूफ, सार्फिन खवार हो गए। लेस्को के मुख्तलिफ दफातर के बाहर सार्फिन का एहतजाज, लाइन्स लॉसर और बिजली चोरों का खमियाजा आम सारिफ भुगतने पर मजबूर हो गए हैं और टाउनशिप कोर्ट अब्दुल मालिक, बदामी बाग कोर्ट लखपत, गुलशन रावी और शालीमार के इलाका में घरेलू सारिफ के बिलों में भी इजाफी यूनिट की शिकायत सामने आई है। जबकि सारिफिन का कहना है कि एक जानिब बिजली महंगी होती जा रही है और दूसरी जानिब ओवर बिलिंग का अजाब मुसल्लत है। लोग घरों की अशिया बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई के वार जारी, ब्रायलर गोश्त के दाम फिर बढ़ने लगे हैं। फार्मी अंडे मजीद महंगे हो गए हैं। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में पहुंच से बाहर हो गई हैं, जबकि मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद ही ना करवा जा सका। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। पोल्ट्री मसनूआत के दाम एक बार फिर बेलगा। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 567 रुपए हो गई। फार्मी अंडे भी ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। अंडे 1 रुपए महंगे 298 रुपए फी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 8,820 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी मुश्किल। ओपन मार्केट में आलू 100, बंद गोभी 140, मटर 500, अरवी 160 रुपए फी किलो है। अदरक 1050, लहसुन 560 रुपए फी किलो दस्तयाब। फलों में अंगूर 450, आम 300, सेब 300, नाशपाती 250 रुपए में फरोख्त होने लगे। आलू बुखारा 500, खजूर ईरानी 650 रुपए फी किलो बेची जा रही है। अवाम कहते हैं कि महंगाई ने कुव्वत खरीद इंतहाई महदूद कर दी है। सब्जी तक खरीदना मुश्किल हो चुका। सब्जी तो कोई गरीब बंदा खरीद ही नहीं सकता सर। कोई सब्जी 100 रुपए से नीचे नहीं है। और अदरक है, वो एक बंदा मजदूर एक पूरी दिहाड़ी लगा के है तो फिर अदरक खरीद सकता है। इतना महंगा अदरक है। महंगाई की अखीर हो गई है। खाने पीने की अशिया आसमान पे चढ़ गई हैं। मुर्गी 500-600 रुपए किलो पे चली गई है। इंतजामिया गरा फरोशी के तदारुक में भी मुसलसल नाकाम है। दुकानदार अशिया ज़रूरिया की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गिरा फरोशों के गिर्द ज़िला इंतजामिया का शिकंजा मजीद सख्त हो गया है। प्राइस कंट्रोल अफसरों के एक्शन में तेज़ी हो गई है। मंडियों में नीलामी के अमल का अफसरान ने खुद जायजा लिया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 से ज़ायद मुकामात की चेकिंग की गई है। 190 के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं।
59 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 49 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 5 दुकानों को सरबा मोहर कर दिया गया है। फ्रूट और सब्जी मंडियों में नीलामी की निगरानी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स ने की है और उनका कहना था कि बोली के अमल में सरकारी निर्खनामों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहर के मुख्तलिफ हस्पतालों, थाने और चिल्ड्रन होम का तवील दौरा है। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने सर्विसेज हस्पताल के एक्सरे रूम में पुराने आलात और फ्लोर टाइल्स देखकर बरहमी का इजहार किया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों, थाने और चिल्ड्रन होम का तवील दौरा। वज़ीर आला ने सर्विसेज अस्पताल की नई इमरजेंसी में फिनिशिंग के काम का मुआयना किया। एक्सरे रूम में पुराने आलात और पुरानी फ्लोर टाइल्स देकर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी तामीरात को लिफ्ट को फौरी फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला के समनाबाद अस्पताल के दौरे के दौरान डॉक्टर कम, मरीज ज्यादा और फार्मेसी भी बंद मिली। डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों के चेकअप में कई घंटे ताखीर की शिकायत। मोहसिन नकवी ने मरीजों की शिकायत पर सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर नासिर जमाल को सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत की। थाना समनाबाद दौरे के दौरान वज़ीर आला ने फ्रंट डेस्क का मुआयना किया और कार्रवाई का जायजा लिया। थाने की हालत ज़ात देकर इजहार नाराजगी। हवालात में हंजरवाल के रिहायशी रहीम बख्श को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का भी दौरा, बच्चों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के फिल्टर का मुआयना किया। बच्चों के हाल में AC लगाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी के दौरों के दौरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर के जौहर टाउन में कायम लाहौर ग्लोबल विलेज और शहर के मुख्तलिफ थिएटर्स के दौरे हैं। मोहम्मद अली रंधावा ने इखलाक बाख्ता थिएटर ड्रामे पेश करने पर लाहौर डिवीजन के तमाम थिएटर सरबा मोहर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जबकि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर ग्लोबल विलेज में इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियों और एतराफ़ में जारी ब्यूटिफिकेशन समेत दीगर कामों का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि 130 कनाल पर मुहित पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लोबल विलेज है। दूसरी जानिब कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर के थिएटर्स के अचानक दौरे किए और इखलाक बाख्ता ड्रामे पेश करने पर तमाम थिएटर सरबा मोहर करने के अहकाम दिए। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर के तमाम थिएटर्स ताहुक्म सानी सील हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मेयारी और मजहब ड्रामों की प्रोडक्शन तक तमाम थिएटर सरबा मोहर रहेंगे। पूरे लाहौर डिवीजन के अंदर थिएटर्स सारे आज से सील हैं और जब तक ये बैठ के प्रॉपर अंडरटेकिंग नहीं देंगे और उसके ऊपर प्रॉपर तमाम के तमाम ऑनर्स और तमाम के तमाम फनकार प्रॉपर अंडरटेकिंग नहीं देंगे कि वो ऐसा ड्रामा सिर्फ हम इधर अलाउ करेंगे जो हमारे तहजीब, तमद्दुन और कल्चर से मिलता हो और जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो और लोगों का इखलाक भी अच्छा हो। जब तक वो ड्रामा तख्लीक नहीं करेंगे, जब तक वो ड्रामा आर्टिस्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी इस किस्म के वल्गर ड्रामों को इजाज़त। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से शहर का हुस्न बिगाड़ कर रख दिया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। शहर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बंद न किए जा सके। रही सही कसर पार्किंग स्टैंड्स में ठेलों और तजावुजात की भरमार ने निकाल दी। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। पार्किंग साइट्स ने लाखों मकीनों के फुटपाथों पर चलने के हुकूक सलब कर दिए। पार्किंग स्टैंड्स की आड़ में शहर में ठेलों और तजावुजात की भरमार। पार्किंग माफिया सहूलतकारी के फराइज अंजाम देने लगा। सैकड़ों की तादाद में ओवर चार्जिंग की शिकायत, मगर अजाला न किया जा सका। पार्किंग कंपनी का 4 करोड़ रुपए महाना का हदफ भी कभी पूरा न हुआ। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक 216 रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड्स को अभी तक कंप्यूटराइज नहीं किया जा सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1000 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद होने का इंकशाफ। मंजूर शुदा बिजनेस प्लान भी अमल दरामद का मुंतजर। नई पार्किंग साइट्स भी अभी तक गैर फाल। पार्किंग कंपनी के अफसरान और इंस्पेक्टर्स गैर कानूनी स्टैंड्स के सहूलतकार निकले। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ शालामार, अजीज भट्टी, गुलबर्ग और समनाबाद जोन में 400 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद। जोन 2 में वाक़े 45 पार्किंग स्टैंड से टोकन फीस आमदन मुकम्मल न की जा सकी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने पार्किंग कंपनी की करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि पार्किंग कंपनी सफेद हाथी साबित होगी। शहरियों से टोकन की मद में जायद फीस वसूल की जाती है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
वासा ने अपने ही मुलाजिमीन की जिंदगियां दांव पर लगा दी। वासा के सेवर मकीनों को बगैर किसी हिफाजती तदबीर के गटरों में उतारकर सफाई करवाने का सिलसिला जारी है। हिफाजती किट का इस्तेमाल न करने पर एक ही माह में 5 प्राइवेट वर्कर्स गटर साफ करते जिंदगी की बाजी हार चुके। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। वासा लाहौर ने अपने मुलाजमीन की जिंदगियों के साथ खेलना शुरू कर दिया। मुल्की और आलमी कवानीन के बरक्स अपने मुलाजमीन के साथ गैर इंसानी सलूक जारी। सीवरेज लाइनों की सफाई के दौरान एक ही माह में 5 वर्कर्स की हलाकत पर भी कोई सबक न मिला। वासा के सिवरमैन बिना किसी हिफाजती तदाबीर के गटरों में सफाई करने पर मजबूर। वासा के शोबा ONM की भेजी गई रिपोर्ट ने ही भांडा फोड़ दिया। खतरनाक गैसेज और गहरे गटरों में उतरने वाले वासा के 3000 सेवरमैनों को हिफाजती किट फराहम नहीं की जाती। जायका जापान ने वासा को सेवरमैन के लिए हिफाजती किट फराहम की थी। हिफाजती किट में गैस सिलेंडर, लेदर सूट और जूते शामिल थे। जापान से इमदाद में मिलने वाली हिफाजती किटें भी चोरी होने का इंकशाफ। लाहौर के गटरों को साफ करने वाले मुलाजिम रिस्क अलाउंस से भी महरूम। गहरे गटरों में उतरने वाले सेवरमैनों और पानी फराहम करने वाले ऑपरेटर्स को कोई अलाउंस नहीं दिया जा रहा। दफातर में बैठने वाले अफसरान डिजाइन, कंसल्टेंसी, डिस्पैरिटी समेत दीगर अलाउंस की सहूलियात के मजे उठा रहे हैं। वासा इंतजामिया का कहना है कि तमाम O&M डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए हैं कि बगैर सेफ्टी किट किसी भी सेवरमैन को गटर में ना उतारा जाए। बसूरत दीगर मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक पुलिस खवातीन को मजीद खुद मुख्तार बनाने में पेश ड्राइविंग स्कूल्स में खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने का सिलसिला जारी। ड्राइविंग सीखने वाली खवातीन का कहना है कि इस ट्रेनिंग के बाद हमें कहीं जाने के लिए किसी को ज़हमत नहीं देना पड़ेगी। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने का मिशन। इचरा, मनावा, लिबर्टी में खवातीन के लिए ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल मौजूद। LOS इचरा में खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने वाली खवातीन का कहना है कि पहले कहीं जाने के लिए घर में किसी को कहना पड़ता था। इस ट्रेनिंग के बाद भाइयों को ये जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। गाड़ी की निस्बत मोटरसाइकिल सस्ती सवारी है। ज़रूरत तो पेश आई थी, ठीक है। सिंगल पेरेंट को अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देनी होती है, तो बहुत से पर्पज़ हैं जिसके लिए आपको मुश्किल होती है कि आपको कोई लेके जाए, छोड़ के जाए। यहाँ पे फीमेल्स का अदारा है, यहाँ पे मेल्स अलाउ नहीं है, तो हम बहुत कंफर्टेबल होकर यहाँ पे सीखते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी ड्यूटी जो है ना वो कश्मीर में है, तो मैं यहाँ पे इसलिए सीखने आई हूँ ताकि जो है ना ट्रैवलिंग मेरे लिए ईजी हो जाए। गाड़ी हर किसी के अफोर्ड में नहीं होती, लेकिन बाइक हर किसी के अफोर्ड में है। इंस्ट्रक्टर हुमैरा ने कहा, इस ट्रेनिंग का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। खवातीन जो पहले ट्रांसपोर्ट के लिए सहारा ढूंढती थी, इस ट्रेनिंग के बाद अपना सहारा खुद बनेंगी। यहाँ पे फीमेल्स ट्रेनिंग के लिए आती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए पहले मेल किसी भाई या फादर को घर पे बाउंड करना पड़ता था। अब बाइक सीखने के बाद इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से न सिर्फ खवातीन बल्कि ख्वाजा सराओं और शुहदा के बच्चों को भी मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से फैसलाबाद बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने चीफ जस्टिस को फैसलाबाद के वकला को दरपेश मसाइल से आगाह किया। एडवोकेट इरफान अली कामुका ने जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस के इकदामात को सराहा। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से फैसलाबाद बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई है और वफ्द ने चीफ जस्टिस को फैसलाबाद के वकला को दरपेश मसाइल से आगाह किया है। एडवोकेट इरफान अली कामुका ने जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस के इकदामात को सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडवोकेट इरफान अली कामुका ने जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस के इकदामात को सराहा है। क्रिस्टन के हॉकिंस ने लाहौर में अमेरिका के नए कौंसल जनरल के तौर पर ओहदा संभाल लिया है। हॉकिंस मिस्टर विलियम के जगह ले रही हैं। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। पाक अमेरिका ताल्लुकात में खुशगवार इजाफा। क्रिस्टन हॉकिंस ने लाहौर में अमेरिका की नई कौंसल जनरल के तौर पर ओहदा संभाल लिया। हॉकिंस कहती हैं, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दरीना शराकतदारी को मजबूत बनाने और पंजाब में लोगों के साथ काम करने की मुंतजिर हूँ। हमारे पास दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के बड़े मौके हैं, जिनमें इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना, अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क के जरिए मुश्तरका आबो हवा, माहौलियाती चैलेंजों से निपटना और अवामी रवाबत को बढ़ाना शामिल है। हॉकिंस इससे पहले इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में कोऑर्डिनेटर बराए इक्तसादी और तरक्याती इमदाद के तौर पर काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान में अमरीकी शहरी इमदादी प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी और नफाज से मुतालिक कोशिशों की निगरानी भी करती रही हैं। हॉकिंस ने अमरीकी सफारत खाने के पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन में भी काम किया, जहाँ उन्होंने तालीमी और पेशा वराना तबादला प्रोग्रामों का इंतजाम और मीडिया की मसरूफियात को मरबूत किया।
मानसून हवाओं से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। शहर में पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सूरज और बादलों में आंख मचोली मानसून हवाओं से शहर का मौसम कदरे खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 अगस्त तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। 26 से 27 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। PDMA ने मुमकिना बारिशों के पेश नजर किसानों और शहरियों के लिए अलर्ट भी जारी कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।